Hello students, today we will start exercise 8.6. It was fully depend upon हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. पिछली एक्सरसाइज में हमने एनुअली पढ़ा था. इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास हाफ ईयरली मतलब हमें इंटरेस्ट 2 टाइम्स पे करना है आफ्टर 6 मंथ एंड देन अगेन आफ्टर 6 मंथ. ओके, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट अमाउंट एंड compound interest on rupees 9,600. What is this 9,600? 9,600 is the principal for 1.5 year. This is time at 8% per annum. This is rate. Okay, see, principal is rupees 9,600. Rate is 8%. Time is 1.5 year. We will convert this fraction into improper 3/2 years. Okay, now this is the question of half yearly. What is the formula of half yearly? Amount is equals to P1 plus R by 200 होल्स टू पावर 2t. क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स पे हो रहा है तो 200 एंड 2t. अगर 1 ईयर में 3 टाइम्स पे हो रहा होता तो 300/3t. ओके, वी विल पुट द वैल्यू अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 9,600. 1 प्लस r इज 8 by 200. 2 multiply by 3/2. We will cut 2 from 2. 3 left. See here, this is a bracket. 1 plus 8 by 200. जब भी फ्रैक्शन में होता है हम एलसीएम लेते हैं. विल टेक द एलसीएम 200. 200 मल्टीप्लाई 1 200 प्लस 8. 208 बाय में 200. इसको अगर हम एलसीएम ना शो करें, हम सीधा कर दें, जो भी अगर प्लस का साइन है तो 200 प्लस 8 200 बाय 200. 9,600 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 8 208 by 200. How many times we will write? 3 times. Multiply by 208 by 200. Multiply by 208 by 200. ये calculations करनी है आपने. I will write the answer here. Okay. Answer is 107987000 बाय में हम इसको काट सकते हैं 2 से. 48 अगेन विथ 2 24 अगेन विथ 2 12. अब नीचे जीरोस रहेगी 1 2 3 4 0. सो आंसर विल बी 101234. हियर डेसिमल विल कम 798.7 rupees. So answer is 10798.7 rupees. Now we have to find the compound interest. Compound interest में निकालना है. Formula of compound interest is amount minus principal. How much is the amount? 10798.7 minus 9,600. So what will be the compound interest? 0.7911. So this is the answer of compound interest. Clear? Now see second question. Find the compound interest on rupees 1 year for rupees 2,000 for 1 year at 5% per annum. So what will be the principal? 2,000 for 1 year at 5% per annum. So rate is 5% per annum. Compounded half yearly. Again half yearly is given. Also calculate the interest if it was compounded annually. अब हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर कोई पर्सन 2,000 रुपीज़ ले रहा है 1 ईयर के लिए 5% रेट पर, और वो हाफ ईयरली के मेथड से भी ले रहा है और एनुअली के, विच इज़ मोर एंड बाय हाउ मच. तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? ओके,
So principal in this question is rupees 2000. Rate is 5%. Time is 1 year. Now we have to do it half yearly and annually. By both method we have to do half yearly. What is the formula of? Yes, A is equal to P 1 plus R by 200 whole to power 2t. Principal is 2000. 1 plus R is 5. 200. 2 multiplied by time is 1 year. Okay. 2000. Again, how we will solve? 200 plus 5. 205 by 200. How many times? 2 multiply 1. 2 times. 5 by 200. 1 2 3 4. 1 2 3 4. We will cut with 2. So answer of half yearly is 2 1 0 2101.25. Okay. Now how we will find annually? A is equals to P 1 plus R by 100 whole to power T. Principal is 2000. 1 plus R is 5 by 100 whole to power 1. 2000 multiply 105 by 100. How many times? 1 time. We have to write it 1 time. So answer is 2100. This is the answer of annually and this is the answer of half yearly. But we have to find the difference in compound interest. So we have to find compound interest. आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं by minus p in both the parts. अगर minus p हम कर देते हैं तो इसी में हम साथ में minus p कर देते हैं. This is the formula of amount minus principal. तो minus 2000. So compound interest is rupees 101.25. Here is also minus 2000. So compound interest is rupees 100. Clear? So which is more, half yearly or annually? Half yearly is more. Half yearly is more. So compound interest half yearly or half yearly compound interest is more than annually. अब उसमें how much भी पूछे, how much is difference? 101.25 minus 100. 1.25 is the difference in compound interest. Now see third question. Anish took a loan of rupees 25,000. So this is the principal at 8% per annum. So 8% is rate. Interest being compounded half yearly. What amount will he pay? बताइए कितना अमाउंट उसने पे किया. We have to find the amount after 1 year, after 1.5 year. अब इसके दो पार्ट्स हैं. मैं इसका सिंपल बता रही हूँ. कैलकुलेशंस आप अपने आप करेंगे. प्रिंसिपल इज रुपीज 25,000. Rate is 8%. Time is 1 year. There are two parts. Principal is rupees 25,000. Rate is 8%. Time is 1.5 year. We will change 1.5 year into mixed fraction into improper fraction. 3/2 years. Okay. Now how you will find half yearly? P R by 200 by 2t. Principal is 25,000. 1 plus R is 8 by 200
होल्स टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1. Okay, 25,000 multiply 200 plus 8, 200 by 2. How many times? 2 multiply 1 2 times. So you have to find the answer of this calculation. Same here. A is equals to P 1 plus R by 200 whole to power 2t. Principal is 25,000. 1 plus R is 8 by 2t whole to power 2 multiplied by 3 by 2. We will cut 2 by 2. 3 left. 25,000 multiplied by 208 by 200. How many times? 3 times. 200. So you have to find the answer here also. Calculate करिए, इसका आंसर आएगा 28121.6. इसका आंसर आएगा 27040. ये सिर्फ मैंने आंसर लिखा है इन रुपीज. यू हैव टू कैलकुलेट इट. आपने इसको काट के और निकालना है. क्लियर है? इस नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच रीमा विल गेट. इसमें क्या निकालना है? अमाउंट विच रीना विल गेट on rupees 81920. So this is the principal if she kept it for 18 months. अगर वो उस अमाउंट को 18 months के लिए रखेगी तो टाइम इज 18 months. नाउ टाइम इज गिवन इन months. We have to convert in years. At 12.1/2% per annum, interest being compounded semi-annually. Semi मतलब half yearly. Clear? We will write here. Principal is rupees. Fourth question. 81920. टाइम इज 18 month. 18 month को जब आप कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में तो हाउ मेनी ईयर्स? 1.5. 1.5 you have to divide it by 2. ओके, वैसे भी 12 months is equal to 1 year. 12 plus 6, 1.5 year. And rate is 12.1/2%. अब रेट को आप ऐसे इसको भी चेंज करिए. 12 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 1 इज 25/2%. हाफ ईयरली निकालना है. अगेन ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 200 की पावर 2t. प्रिंसिपल इज 81920. 1 प्लस आर इज 25/2. देखिए 25/2 और नीचे भी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 200 हो जाएगा. ये 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम इज 1.5. 1.5 मतलब 3/2. 2 से 2 कर गया 3 टाइम्स. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 3 टाइम्स. 81920 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 400. 400 प्लस 25. 425 बाय में 400. How many times? 3 times. 425 by में 400. 425 by में 400. You have to calculate this. I am writing only answer rupees 98260. This is your answer. Clear? Next question is the population of a town in the year 2002 was 22050. So this is the principal is equal to rupees 22050. The population grows at the rate of 5%. So rate is 5%. What was the population in the year 2000? अब आप देखिए यहाँ पर आपको देखा है 2002 और आपसे बैक का पूछा गया 2000 का. क्लियर? और 2004 का. 2 का पूछा गया आपसे, 2000 का और 2004 का. देयर आर 2 पार्ट्स. तो आप ये देखिए जब आपको यहाँ ये जो दे रखा है ये 2002 का दे रखा है. अगर हमें बैक का पूछा जाता है तो हम इसको अमाउंट मान के चलते हैं. सो इट बिकम्स अमाउंट. दिस इज अमाउंट. वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल. सो व्हाट विल द प्रिंसिपल इन टाइम इज, अगर 2002 का दे रखा और 2000 का पूछा हुआ है तो हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स. कितने का गैप है? 2 ईयर्स का गैप है. प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट
1 प्लस आर बाय में 100 पावर टी। ये सेम फॉर्मूला है जो भी हम करते आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय में 100 की पावर टी। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। आप इसमें पी की जगह अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट की पुट कर दीजिए। क्लियर? चलिए मैं इधर पुट करती हूँ। अमाउंट इज 22050 1 प्लस 5 बाय में 100 होल्स टू पावर टाइम इज 2 22050 100 प्लस 5 105 बाय में 100 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब डिनोमिनेटर में नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें उसको ऊपर लेके जाते हैं और उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 22050 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 105 होल्स टू पावर 2। 22050 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 105 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 105। अब आप इसको काटेंगे, यू विल गेट आंसर 20,000 रुपीज़। क्लियर है? पहले प्रिंसिपल 20,000 था 2002 में, और 2002 में इंटरेस्ट के बाद वो अमाउंट बन गया 22050। नाउ यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ 2004। अब 2002 में मेरे को पता है क्या है, तो सो दिस इज द प्रिंसिपल 22050। रेट इज 5%, टाइम इज 2 years। आप इसका निकाल सकते हैं इजीली। इसमें कोई हाफ ईयरली नहीं कह रखा। टाइम इज 2 years। 2050 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 105 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कट करके यू विल गेट द आंसर ₹24310.125। क्लियर? इसकी कैलकुलेशंस करनी है आपने। जितनी प्रैक्टिस आप कैलकुलेशन की करेंगे उतनी पेपर में आप फास्ट कर सकेंगे। क्लियर? सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 4,80,000। कॉस्ट क्या है कार की? 4,80,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ ₹10%। अब ये अमाउंट देखिए लोन का नहीं आ रहा या कोई बोरो का नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट हेयर डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। कार, अगर हम कोई कार या व्हीकल लेते हैं, आप खुद देखिए जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, बढ़ती भी नहीं है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% per annum. What would be the value of the car after 2 years? So principal is ₹4,80,000 and depreciation मतलब rate is 10%. Time is 2 years. This is 6th question. Okay. Now चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 माइनस डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना बाय में 100 होल्स टू पावर टी। प्लस की जगह यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है तो माइनस आ जाएगा। प्रिंसिपल इज 4,80,000। 1 माइनस आर इज 10 100 की पावर 2। 4,80,000। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करते हैं। 100 माइनस 10 इज 90 बाय में 100। हाउ मेनी टाइम? 2 times. Okay, we will get the value ₹388,800. After 2 years, the value of that car is 388,800. 3,88,800. क्लियर? डेप्रिसिएशन समझ में आया? डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल्स इन अ फैक्ट्री ग्रोज एट द रेट ऑफ 4%। अब
हमारे जो फैक्ट्री में ग्रोथ हो रही है वो किस परसेंट से हो रही है? 4% से. इफ़ द प्रोडक्शन in the month of June is 5408 articles, what were the number of articles produced in the month of April? अब हमें जून का पूछ दे रखा है और अप्रैल का पूछा गया, तो सो दिस बिकम्स द अमाउंट. अमाउंट हो गया ये, हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट इक्वल टू 5408. और टाइम कितना होएगा? अप्रैल, मई और जून का दे रखा है हमें. देखिए दोबारा से, अप्रैल का पूछा हुआ है और जून का दे रखा है. ओके, व्हाट वर द नंबर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? सो हाउ मेनी? 2 months, अप्रैल, मई एंड जून. टाइम इज 2 months. अब ये सारा ही मंथ से रिलेटेड है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस, अभी मैंने पहला क्वेश्चन उस फॉर्मूले से किया था, आप इससे भी कर सकते हैं और प्रिंसिपल वाले से भी कर सकते हैं. T R is 4, 104. इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर देंगे. 100 we will get 5000 articles. Clear all of you? This is your 8.6. You have to complete it with proper calculations. Okay.